Definitely, first of all, would like to congratulate Australia on a series win for sure. They played good cricket. But as a team, I'm really proud of the fact that the Pakistan team shown a great courage, shown a great intent, and played with a great passion to win the game. And I'm really proud of them. Yeah, we made some mistakes as a team. We will take that. We will address those things. But with the same time, I believe inconsistent umpiring, technology curse really given us the result which should have been different. So I feel like these are the areas need to be addressed rightly. Could you talk a bit about obviously That decision, if you see the whole game, the very inconsistent decisions of the umpiring, like we play this beautiful game of cricket with a natural instinct, and we all know the basics of the game. But sometimes it seems like it's a technology show. It's not the cricket we are playing inside. So I believe this is the area need to be addressed rightly. But yeah, we played better cricket as a team. I'm proud of that. Do you think that technology is the technology? First of all, we made some mistakes. There were certain moments of the game where we couldn't grab those moments really well. But with the same time, as I said to you, the inconsistent umpiring and the technology curse really brought a couple of things which not understandable. We all watched the game, and there were certain areas of the game which basically, like technology, I'm in favor of that, but if giving you the benefit. But if it bringing some doubts, in bringing some curse into the game, it should not be acceptable by anyone. So because we played this beautiful game of cricket on the basics of the game, but sometimes the technology brings some decisions which obviously, as a human, we don't understand. Hitting the ball to the stump is always out. Why it's umpire's call? I never understand that. So I think there are a lot of areas need to be addressed for the betterment of the cricket in general. So I think technology is something is taking that game away from the instinct of the game basically. Like personally, if I would, it won't bring any difference, because at the end of the day we all watch the game, and we notice some of the areas. Obviously, if as a cricketer we don't understand, and we play this game for the fans, and the fans will never understand why this technology is inconsistent, and the result of the game basically comes up differently. Not really. I think we prepared ourselves very well. The way team give that courage to take this game on, the way they take this game in a best possible way they can bring up as a batsman, as a bowler. Like if the whole game I will sum up, our Pakistan team played better than the other team in general. Our batting intent was better. Our bowling was hitting in the right areas. Yes, we made some mistake that we lost the game, but as a team, I believe that there were a lot of right positive within the team to win the game. But unfortunately, at the end, we didn't win the game. I spoke to him, and he's a very honest person. And what he said to me, he said he did not even feel that it touched anywhere in the gloves. And what we saw, like there should be a conclusive evidence to reverse the decision of umpire. That's what I know. The umpire given it not out, and there was no very conclusive kind of evidence where the decision has to be turned over. So I don't know how to say further than this, but I'm sure, like as I said to you earlier, this technology is basically putting a curse on this beautiful game of cricket. We need to address it very rightly. I think in this innings he was really confident. His body was really responding very well. He was making a very strong position, which normally he does everywhere he plays. So really happy to see that he addressed those small things which was earlier, but the time he spent inside, we felt like he's there for a big innings, and that's coming very soon. Thank you. Yeah, definitely. We saw Abdullah wasn't feeling comfortable out there. Obviously, as a team, you always back your teammates if something is not going well for him. But we made that decision, like if he's not feeling comfortable, Babar is always a better fielder, so why not he should take that lead and go to the first slip. So I think that also worked out very well for me as a director to feel like I can see the right person is at the right job. Obviously Abdullah is also a good fielder, but somehow he's not feeling confident as a slip fielder.
You're absolutely right. Actually, obviously, these guys been doing training together from the last 1 year time. By the time they're playing together, and obviously he did a very good job as a slip fielder. As a fielder, he used to have this area. He used to do the slip fielding very well. But different condition might be disturbing him. But I would still believe that he's a good fielder. But obviously, might be the confidence went away, which as a slip fielder I know as a slip fielder, because I did in my career too. Once that confidence go away from you, you need a little bit time, which we will definitely give him. टैलेंट हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा, जिस तरह की ये टीम जेल इन हुई हुई थी, सो हमें अभी भी लगता है कि वी स्टिल कैन विन द मैच हियर इन ऑस्ट्रेलिया. ऑब्वियसली दिस गेम वाज वेरी क्लोज टू अस, लेकिन हम लोग नहीं जीत सके. उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमने की. पहली इनिंग्स के अंदर 50+ एक्स्ट्राज वाज रियली हर्टिंग अस. उसके बाद 124 for 1, और फिर जो हमारी बैटिंग का वो जो 1.5 घंटे के अंदर 5 आउट होना, वो भी मेन बैट्समैन आउट होना, बैटिंग फर्स्ट जो हमने यहाँ पे की, वो एक क्रूशल मोमेंट था गेम का जो हम लोग विन नहीं कर सके. फिर उसके बाद 16 for 4 वी ड्रॉप कपल ऑफ कैचेस. देवर सम ऑफ द कैचेस शुड हैव बीन टेकन, शुड हैव बीन अटेम्प्ट. वो नहीं हुआ. तो वो सर्टन मोमेंट्स थे जो हम लोग विन नहीं कर सके. अदरवाइज़ ये गेम हम लोग, अगर हम अपने चांसेस ग्रैब करते और वो क्रूशल मोमेंट्स हम लोग, जैसे जो मैंने बात की, अगर वो जीते तो ये शायद मैच इससे पहले ख़त्म होता और हम लोग जीत जाते. लेकिन दिस इज़ द वे दिस गेम गोज़. अगर आप मिस्टेक करें तो ये गेम आपको थोड़ा तकलीफ़ पहुंचाती है. रिजवान पे क्या कहेंगे? देखें, रिजवान की बड़ी शानदार इनिंग्स थी, और वो और सलमान आगा दोनों ने हमें ये फ़ील दी. उससे पहले भी ये फ़ील आई जब शान और बाबर खेल रहे थे, तभी हम सबको एज ए टीम लग रहा था कि ये हमारे मेन प्लेयर हैं, दे कैन विन द गेम फॉर पाकिस्तान, एंड दे वर प्लेइंग वेरी वेल. लेकिन शान के आउट होने के बाद, फिर बाबर के आउट होने के बाद, एवरी टाइम, क्योंकि हमें एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है एज ए टीम, हमें लग रहा था कि वी स्टिल कैन विन द गेम. बट एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसके बाद एकदम से जो है हमारी टीम जो है वो उस तरह फाइट नहीं कर सकी. बट स्टिल ओवरऑल अगर मैं पूरी गेम को देखूँ तो पाकिस्तान टीम ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली. पहले दिन से आखिरी दिन के आधे घंटे तक वी वर बेसिकली कंट्रोलिंग द गेम. लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मैंने कहा, क्रूशल मोमेंट्स है जो हम लोग विन नहीं कर सके. बता दूँ, मैं हेड कोच नहीं हूँ, टीम डायरेक्टर हूँ. दूसरा बाबर के हवाले से है कि बाबर एक शानदार प्लेयर है और हम उनकी बड़ी इनिंग्स के लिए दुआगो हैं. और जिस तरह उन्होंने इस इनिंग्स के अंदर फाइट आउट किया, जिस तरह उन्होंने जो टाइम गुजारा पिच के ऊपर, वो बहुत ही पॉजिटिव था. जो एक बैट्समैन की स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनने की एक रोटेशन होती है, वो उनकी थी वहाँ पे. बड़े स्ट्रांगली उनकी जो डिफेंस था या शॉर्ट रेंज थी, वो उनकी पोजीशन अच्छी बन रही थी. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मुझे लगता है कि बाबर की वो जो चीज़ें वर्क करने के लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी बड़ी इनिंग्स से पहले, वो उसकी वर्क कर रही हैं इन द फील्ड. नेट में तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. तो ये कॉन्फिडेंस उनको देगा, और वी लुकिंग के वो यहाँ पे एक बच्ची और बड़ी इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को मैच जितवा के यहाँ से जाएँ. आईसीसी के रूल में बेहतरी आने की हमेशा गुंजाइश है, और हम सब लोग इस खेल के अंदर बेहतरी चाहते हैं. मैं हमेशा मानता हूँ कि अंपायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है. क्योंकि एक ही अंपायर कॉल कभी किसी की फेवर में जाती है और कभी किसी के ख़िलाफ़ चली जाती है. तो जो स्पेशल हिटिंग द बॉल है, जब 3 स्टंप्स को बॉल लग रहा हो, दैट हैज़ टू बी नॉट लाइक इट हैज़ टू बी चेंज. क्योंकि जो हिटिंग द बॉल है वो हमेशा आउट होना चाहिए. क्योंकि ये एक बड़ी सिंपल चीज़ क्रिकेट की जो हमने देखी है कि जब भी स्टंप्स को बॉल लगेगा वो हमेशा आउट होगा. तो कैसे हो सकता है कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से एक की फेवर में चले जाए और दूसरे को नुकसान पहुँच जाए. तो आई एम टॉकिंग इन जनरल. आई थिंक दिस इज़ द एरिया हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर वेल. देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श है. फ़ैन्स पाकिस्तान क्रिकेट से अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, और हम भी फ़ैन्स के लिए पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला हमारा प्राइड है एज ए टीम. और फैंस की रिस्पेक्ट हम हमेशा करते हैं, और हमेशा ये चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दें मुल्क के लिए, ताकि फ़ैन्स की इंगेजमेंट बढ़े. मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी भी कमी आएगी. हमारी एफ़र्ट में कोई कमी नहीं है. अगर मैं इस 2 मैचों को रिव्यू करूं तो पहले मैच में हम लोग शायद अच्छा नहीं खेल सके, जो कि बिल्कुल फैक्ट है. इस मैच के अंदर मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होगा कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके की क्रिकेट हमने खेली एज ए बॉलिंग यूनिट, हमने जिस तरीके की बॉलिंग की, हमने एज ए बैटिंग रन्स पर ओवर के अंदर भी हमने दूसरी टीम को जो है पीछे छोड़ा. हमारे जो क्रिकेट खेलने के इंटेंट था बैटिंग के अंदर, वो भी बेहतर था. क्रूशल मोमेंट्स, जैसे मैंने कहा कि वो हमारे इस मैच को हम लोग नहीं जीत सके. हमने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से हम लोग ये मैच नहीं जीते.
वो डेफिनेटली हम एड्रेस करेंगे फील्डिंग पार्ट को या वो क्रूशल मोमेंट जीतने के पार्ट को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मैच की जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार थी, एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट थी टीम की, जिससे मुझे लगता है कि फ़ैन ज़रूर खुश हुए होंगे। हार और जीत विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस कि टीम जो है वो उस जोन में खेले जहाँ पे वो जीत सकती है। तो आई थिंक दैट जोन वाज देयर। आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट द जोन वाज देयर। जीत के ट्रैक पे टीम नहीं जा रही है क्योंकि एज लॉन्ग एज यू फॉलोइंग द राइट पाथ, हार और जीत विल बी अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आपके खेलने का तरीका, आपके हारने का तरीका वो भी काउंट करता है। और आई थिंक ये जो हार है इस पर मैं ज़ाती तौर पर खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ एज ए टीम डायरेक्टर के जो प्लान्स दिए गए उसके मुताबिक क्रिकेट खेलेगी। आउट होने का मकसद ये नहीं कि हमेशा आउट होना गलत होता है। मुझे लगता है कि इसमें सऊद शकील का शॉट वाज ऑन और आई थिंक ही मेड अ राइट अटैम्प्ट। अनफॉर्चुनेटली वो एज लगा, लेकिन वो शॉट वाज देयर टू हिट एंड आई थिंक ही प्लेड दिस शॉट इन द नेट मैनी टाइम और उसने उसी की एग्जीक्यूशन की। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एज ए टीम डायरेक्टर जो मेरा प्लान है अपने बैट्समैन के लिए वो ये है कि वो अपने बोल्ड डिसीजन को बैक करे, और बोल्ड डिसीजन हमेशा स्कोरिंग रन्स ऑप्शंस लेने पे आएगा। उसमें फेलियर होना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस दैट यू ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू प्ले दो शॉट्स जो आप जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अपनी शॉट इस मैच को लेके, अगर मैं देखूं तो जो बैटिंग इंटेंट था वो बहुत शानदार था। अब्दुल्ला ने जो 60+ रन्स किए वो भी बेहतरीन इंटेंट के साथ खेला। शान ने दोनों इनिंग्स में जो 50 रन्स किए वो भी वो इंटेंट है जो मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्ड करती है, जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं, जिसमें अलाउ मैं करना चाहता हूँ बैट्समैन को कि वो फ्रीडम के साथ खेले, वो डर के ना खेले, वो अपनी शॉट खेलते हुए अपनी फुल क्लैरिटी और अपने पूरे जो कन्विक्शन के साथ है वो क्रिकेट खेले। क्योंकि जब तक आप प्लेयर को उसको फियर से बाहर आके क्रिकेट खेलने की इजाज़तें देंगे वो शॉट नहीं खेलेगा। सो आई एम हैप्पी दैट द मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस आर टिक बाय द बैटिंग यूनिट। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो मिसिंग पार्ट है, जो मुझे लगता है कि जो अभी तक हमारी टीम ने नहीं दिखाया, वो एक डोमिनेंस ऑफ अ पार्टनरशिप है, कि एक डोमिनेटिंग किस्म की पार्टनरशिप जो 100+, 200, 150+ की जो है वो अभी तक नहीं आई। एक बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अभी तक विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज गाइज दैट दे विल शो वेरी सून, दे विल प्ले वेरी सून, वो अभी तक नहीं आई। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो काम करना शुरू हुए हैं इस दूसरे टेस्ट में, जो मुझे लगता है कि जो प्लान था उसके मुताबिक खेला गया। भी इंडिविजुअल की गेम के अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं एक गेम प्लान को मैंने सब तक पहुंचाया है कि इस गेम के प्लान के मुताबिक खेलें। जैसे आज के प्लान में भी अग्रेसिव इंटेंट था कि आप इस खेल को तभी जीतोगे जब 316 रन्स बनाओगे, और उसके बनाने के लिए आपने 100 ओवर्स खेलने हैं। जब आप 100 ओवर्स खेलेंगे पाकिस्तान विल विन द गेम। दैट वाज अ सिंपल प्लान। लेकिन उसके दौरानिए में अगर मैं देखूँ तो जो खेल खेला गया, जिस तरह के बैट्समैनों ने शॉट अटैम्प्ट किए वो अग्रेसिव थे। आई एम हैप्पी ऑन दैट। आउट होना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज योर इंटेंट इज़ पॉजिटिव, यू टेकिंग द बोल्ड ऑप्शन एज ए बैट्समैन, वी गुड टू गो। सबसे पहले तो मैं शान के हवाले से कहूँगा कि ही इज़ अ लीडर ऑफ अ बैटिंग एट द मोमेंट। जो इंटेंट हमें चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए, ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्योंकि हम छठे नंबर पे इस वक्त हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और हमसे ऊपर वाली जो 4-5 टीमें हैं उनके खेलने का जो तरीका है वो 4 रन्स पर ओवर के पास है। जब तक हम उसके मुताबिक नहीं खेलेंगे वी विल नेवर विन द गेम। और शान रियलाइज दैट एंड ही वांटेड दैट थिंग टू अप्लाई ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट, और फिर वो यही चाहता है कि दूसरे टीम के प्लेयर भी उसको उसी के मुताबिक खेले। एंड दैट इज़ अ सिंपल प्लान आई गिवन टू ईच एंड एवरी वन। हो सकता थोड़ा सा टाइम लगे एडजस्ट करने में, लेकिन आई एम पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि किसी भी प्लेयर को अपने जोन को बदलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो कि मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। प्रैक्टिस उसके मुताबिक होती है। शान इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज ए सेड टू यू, कि वो एक कप्तान होने के नाते जो उसको ब्रांड ऑफ क्रिकेट खिलाना है वो सबसे पहले खुद करके दिखा रहा है। अगर मैं इस दूसरे टेस्ट मैच को देखूं तो मोस्ट ऑफ आवर बैट्समैन जो थे उनके जो स्ट्राइक रेट थे वो बहुत अच्छे थे, उनकी पॉजिटिव इंटेंट थी टू स्कोर द रन्स। क्योंकि इस खेल के अंदर जब तक आप पॉजिटिव इंटेंट से नहीं खेलेंगे आप पीछे रह जाते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है। जो शान और बाबर की कप्तानी में बात करें तो कंपैरिजन करने वाला मैं नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि शान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। अभी इन 2 टेस्ट मैचों में जिस तरह लीडरशिप, जो कप्तानी के डिसीजंस वो अंदर ले रहे हैं, वी एज आई एम एज ए टीम डायरेक्टर वेरी सेटिस्फाइड। $500 का जुर्माना भी आया। ये आप ही सवाल कर सकते हैं, इसके जवाब देने की शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफिशियल ड्यूटी पे होते हैं तो आपको ऑफिशियल ड्यूटी के दरमियान नहीं सोना चाहिए। जो टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है वो एक ऑफिशियल टाइम है जो आप गुजार रहे हैं। तो उसमें कोई भी प्लेयर अगर सो रहा है तो मुझे आप बता दें कि क्या आप अपनी जॉब के ऊपर यहाँ पे अगर आप सोए होंगे तो सवाल कैसे करेंगे?
तो आपको जागना पड़ेगा, इसीलिए आप जो क्रिकेटर है उसको ग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए जागना पड़ेगा। जरूर पड़ती है, क्योंकि आपको राइट एडजस्टमेंट और राइट टैक्टिकल जो है एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। आपकी बहुत मेजर ड्रास्टिक किस्म की जो है वो चेंजेस इन टेक्निक तो नहीं होती, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग एज ए मैनेजमेंट कि हम अपने प्लेयर को राइट टैक्टिक्स ऑफ द गेम के ऊपर जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनकी टेक्निक के अंदर थोड़े बहुत कोई कमी मुझे तो नज़र नहीं आती, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं टेक्निक पे जाऊँ तो ये टेस्ट टीम बहुत ही सॉलिड टेक्निक होल्ड करती है। थोड़ी बहुत ट्वीक्स आपकी चाहिए, थोड़े बहुत बेहतरी आपको टेक्टिकली चाहिए, जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो मिसिंग पार्ट है, जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वी विल हैव टू एड्रेस, कि जब भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जाए, वहाँ पे कम से कम हमारे 2 प्रैक्टिस मैच होने चाहिए। हमें वहाँ से 3 वीक मिनिमम हमें गुजारने के बाद टेस्ट खेलना चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर आप 2 दिन 10 दिन पहले जाते हैं तो शायद आप राइटली जो है अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल ट्राई कि जब भी हम ऐसी किसी जगह पे जाएं वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले टू मेक इट अंडरस्टैंड कि कंडीशनल जो एडजस्टमेंट है उसके लिए प्लेयर को इनफ गुड टाइम मिले, क्योंकि एक साइड मैच खेलना, एक 4 डे मैच खेलना इज़ नॉट गुड इनफ। किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान देखें ट्रेडिशनली पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर थोड़ा स्लो पिच है, वहाँ पे स्लो बाउंस है। उसको बेहतर करने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज़रूर क्रिकेट बोर्ड से बात की जाएगी कि उसके ऊपर ज़रूर हम एड्रेस करें उस मामले को। लेकिन हर कंडीशन के एक अपना फ्लेवर है। पाकिस्तान की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के जैसे नहीं हो सकती, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन इंडिया के जैसी नहीं हो सकती। तो हमें लगता है कि हमारी कंडीशन को मज़ीद फ्लेवर में लाने के लिए हमें कुछ ज़रूर वहाँ पे काम करना है। लेकिन जब भी किसी नई कंडीशन में जाएँ, वहाँ पे जाने के स्पेशली इन दीज कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यहाँ पे जाते वक्त थोड़ी सी जो कंडीशनल एडजस्टमेंट है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली ट्राई कि अपने MOU के अंदर वो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग ज़रूर ऐड ऑन करें।